Hello student, this is MM Go and you are studying from me Accountancy chapter Admission of a New Partner. Today's topic is Investment Fluctuation Reserve. आज आप लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू and I want to teach you about what does mean by the word investment fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve is created by out of the profit. बिजनेस का जो प्रॉफिट है उससे ये बनता है. And whenever the market value of investment is fall, we will maintain by the investment fluctuation reserve. ये जो investment fluctuation reserve है ये बिजनेस के प्रॉफिट से बनता है. और जब भी बिजनेस का कोई भी इन्वेस्टमेंट में उसके मार्केट वैल्यू में कमी आती है तो उस कमी को हम लोग मेंटेन करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. Here there are 5 cases during the treatment of investment fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग 5 केस का इस्तेमाल करेंगे. There are 5 cases. Here I have taken an example. A, B are the partner whose profit sharing ratio is 3:2. C admitted as new partner 1/4 share of the profit. Here is given a balance sheet which is shows investment fluctuation reserve is 30,000 and investment is 5 lakhs. Or here are 5 cases. 2 cases are same, case number 1 and case number 2. Case number 1, if there is no any information about the investment, you mean investment book value is equals to market value, more than, less than, there is no any information about that. That is the case number 1. And case number 2, market value is equals to the book value. Balance sheet shows the value is the book value and other information if there is given that will be the market value. So 2 cases, case number 1 and case number 2 we will solve in same way. That means there is no difference. No any information is given and book value of investment is equal to the market value of the investment. Both cases are same. How will you solve like this problem? To solve this problem, we will prepare a partner's capital and journal account and working note. I have already informed you admission of a new partner, most of the items is divided into old partner, old ratio. So here the investment fluctuation reserve value is 30,000. So 30,000 is divided among A and B, between A and B, in which ratio? 3:2. So that means 3/5, 2/5. I put here 30,000, 30,000. We get 18,000, 12,000. I have already teach you. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में. सो आई हैव रिटन हियर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. मैंने आपको पढ़ाया है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कहाँ लिखते हैं? Partners capital के credit side. I have written here, and the amount is 18,000, 12,000. Now, from the ledger we will prepare journal. Very simple.
एनीथिंग विच इज इन बाय दैट मीन्स इट विल बी डेबिटेड। हमने आपको पढ़ाया है कि कोई भी चीज अगर बाय में है मतलब उसको डेबिट करना। तो अगर ये डेबिट हो गया तो ये ऊपर वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो आई हैव रिटन हियर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to A's capital account, B's capital account. The amount of investment fluctuation reserve is 30,000. A's capital 18,000, B's capital 12,000. So case 1 and case 2 is same. Case number 3. Here the situation is, in the case number 3, the difference amount of investment, you mean book value is 5 lakhs. Case number 3, we are talking about case number 3. Book value is 5 lakhs and market value is 4,82,000. यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कम हो रहा है। हाउ मच? 18,000। 18,000 इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कमी आ गई। तो इसको मैनेज कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसीलिए तो बनाया गया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसी के लिए बनाया गया है कि जब भी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कमी आएगी तो उसको मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा। तो कितने की कमी आ गई? 18,000 की। हमारे पास कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? 30,000। तो 30 में 18 माइनस कर दीजिए। 13,000 18 12, 18,000 का 18,000 आई हैव यूज्ड फॉर मेंटेनिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमने 18,000 से मेंटेन किया, फिर भी मेरे पास बच गया। हाउ मच अमाउंट? 12,000। सो 12,000 डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लुक हियर, 12,000 12,000 72 4 सेम एंट्री। जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात आएगी तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 7,200 4,800 एंड सेम जर्नल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। यहां पर एक नया एंट्री हो गया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि केस नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट में 18,000 की कमी हो गई। तो हम इन्वेस्टमेंट को कितना दे दिए? 18,000 और बाकी हमारे पास कितना बचा? 12,000। सो 12,000 डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सो ए गेट 7,200 एंड बी गेट 4,800। दिस इज द केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 4, book value is 5 lakhs and market value is 4,55,000. So the difference amount is 45,000. 45,000 is more than investment fluctuation reserve. My dear student, आपने रिजर्व के तौर पर रखा है 30,000 और इन्वेस्टमेंट में फॉल कितना कर गया? 45,000। दैट मीन्स फॉल अमाउंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट। केस 3 में आपने क्या पढ़ा था? फॉल अमाउंट इज लेस देन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वहां पर क्या था कि फॉल को हमने मेंटेन किया, उसके बाद भी मेरे पास रिजर्व में बच गया, तो उसको हम लोग क्या किए? ओल्ड पार्टनरों में बांट दिए। बट इन केस नंबर 4 द डिफरेंस अमाउंट इज मोर देन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ज्यादा है।
30,000 हमने रिजर्व में रखा है और फॉल कितना हो गया 45,000। जितना मेरे पास पैसा नहीं उससे ज्यादा फॉल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि 45,000 हम मैनेज करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो हमारा फॉल कर गया इन्वेस्टमेंट, तो वहां पर हम 45,000 मैनेज करेंगे। और ये जो 15,000 है, मेरे पास 30 है, इसका मतलब और हमको 15 चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देंगे कि जो हमारा एसेट इन्वेस्टमेंट है उसके 15,000 की वैल्यू कम हो गई। वंस अगेन, here the situation is the difference amount. Difference amount means book value of investment and market value of investment. The difference amount is I got 45,000 and 45,000 is more than investment fluctuation reserve. रिजर्व में मैंने 30 रखा है और इन्वेस्टमेंट में फॉल कर गया कितना 45। तो यहां पर क्या हो गया 15,000 का मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके वैल्यू 30,000 तो मैनेज हो गया जो हमने रिजर्व रखा था, लेकिन और 15,000 चाहिए। तो वो 15,000 के लिए हम क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो 15,000 डिक्रीज कर गया। सो आई हैव मेंशन हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। टोटल 45 का फॉल हुआ था इन्वेस्टमेंट का, तो 30,000 हमारा रिजर्व में था, तो 45 में 30 माइनस कर देंगे, देन रेस्ट इज 15,000। सो 15,000 इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आई हैव रिटेन in revaluation account investment account equal to 15,000 and journal for that investment fluctuation reserve 30, revaluation account 50,000 and investment account 45,000। हमने यहां क्या किया 30,000 मैनेज कर दिया और बाकी जो 15,000 है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिए कि जो एसेट था उसके वैल्यू में 15,000 की कमी आ गई। नाउ केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू इज ₹5 lakhs and the market value is 5,24,000. So here the difference amount is more than book value. Case number 5, market value of investment is more than book value. That means the difference amount is 24,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज हम लोग तभी करते हैं जब इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कमी आती है। Here the value is not decreases, value is increases. So simply हमारे पास जो 30,000 रखा हुआ था, जो 30,000 हमारे पास रखा हुआ था, उसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नो नीड ऑफ दैट। हमने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग इसलिए बनाते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कमी होगा तो उसको मैनेज करेगा। यहां पर इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कमी नहीं आई है, इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो अमाउंट है, यू मीन 30,000, इट विल डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सो आई हैव रिटन investment fluctuation reserve account debit to age capital account with capital account. 30,000 divided in the ratio of 3:2. You mean 18,000, 12,000.
जब भी एसेट के वैल्यू में कमी आती है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और जब इंक्रीज कर जाता है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अभी आप हमसे पढ़ रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।